Good morning, class. Today I will start your new chapter, that is chapter number 3, Public Private Global Enterprises. See, the chapter name is Public Private Global Enterprises. ये chapter start करते हैं. In this chapter what we will study, these are the topics of chapter number 3. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, दोनों का मतलब क्या होता है. सेकेंड हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. देन वी विल स्टडी द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट्स फीचर्स, इट्स मेरिट, डीमेरिट एंड सुटेबिलिटी. फिर हम आएंगे स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन. अगेन वी विल स्टडी इट्स फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सुटेबिलिटी. Then we'll come on the topic government company. We'll study under this features, merits, demerits and suitability. फिर हम आएंगे next topic पे, that is global enterprises, which is also known as the MNCs, multinational companies and its features. फिर पढ़ेंगे joint venture और उसके features. Then last topic है chapter का public private partnership, which is also known as PPP. Right? So these are the topics of chapter number 3. Let's start from the very beginning. Meaning of public sector enterprises and private sector enterprises. See, सबसे पहले public और private का meaning हमें पता होना चाहिए before starting this chapter. See, public sector enterprises कौन सी enterprises हैं? Public sector enterprises वो वाली enterprises हैं, as its name suggests, which is directly owned, which is directly controlled, which is directly managed by the government. See, public enterprises हमारी वो वाली enterprises हैं जो directly government manage कर रही है, और private enterprises, private sector enterprises हमारी private enterprises हमारी वो वाली enterprises है which is owned, managed and controlled by, which is owned, managed or controlled by the private people, by the private individuals or group of individuals. So it is very simple. Public enterprises are those enterprises which is directly controlled by the government. Private enterprises are those enterprises which is directly controlled, managed by the private individuals or the group of individuals. So its meaning is very simple. See, meaning देखते हैं. Public sector enterprises are those enterprises which are owned, managed and controlled by the government. यानी गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर है, गवर्नमेंट ही उसको मैनेज कर रही है, गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल कर रही है. For example, departmental undertaking, statutory corporation and government company. Or private enterprises are those enterprises which are owned, managed and controlled by the individuals or group of individuals. So private enterprises हमारी वो वाली हैं जिनको individuals, जिनको private लोग ही या तो ग्रुप में या कोई individual person जो है वो ही ऑनर है, वो ही मैनेज कर रहा है, वो ही कंट्रोल कर रहा है. हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, राइट. हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था. ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स थी हमारी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमने लर्न करा था उसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारे टॉपिक हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं. पार्टनरशिप हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में. तो जॉइंट स्टॉक हमने सेकंड चैप्टर में 5 फॉर्म रीड करी थी. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप. सो दीज 5 फॉर्म्स वर जस्ट द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर. जो ये सारी फॉर्म थी ये प्राइवेट सेक्टर की थी, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की थी. और अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होंगी. इसकी बेसिकली 3 मेन फॉर्म है जो इस चैप्टर में दी गई हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग,
statutory corporation, and government company. सो अगर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की ये 5 फॉर्म्स थी हमारी, और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की हमारी बेसिकली 3 मेन फॉर्म है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द public, private, global enterprises. Private enterprises that we have already studied in chapter number 2. The forms of private enterprises: sole proprietorship, Hindu family, joint stock company, cooperative society, partnership. And this chapter is all about basically public sector enterprises. Public sector enterprises हमने पढ़नी है, और हमने global enterprises पढ़नी है. प्राइवेट हमने सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जो हम मेन यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. राइट. सो हमारे टॉपिक की लिस्ट में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग कवर करना है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर दोज एंटरप्राइजेज which are owned by the government, and private sector enterprises are those enterprises which are owned by the private people or individuals or group of individuals. Second topic पे आते हैं, difference between private sector enterprises and public sector enterprises. Difference cover करते हैं. See, these are the difference between the private sector enterprises and public sector enterprises. First basis आता है ownership. Owner कौन होता है? Private is owned by the private individuals. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और बोथ. जो पब्लिक है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, या स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, या फिर दोनों का रहेगा. राइट. सेकेंड बेस आता है मोटिव, पर्पस. प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होगा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक सेक्टर का मोटिव होगा टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर. Its motive, it's not to earn profit, it's not to earn maximize profit, its motive is to promote the public welfare. Social welfare is very important for public sector enterprises. Then comes forms of organization. See, private में कौन कौन सी फॉर्म आप सेटअप कर सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. राइट. और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की मेन फॉर्म होगी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. प्राइवेट में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज देयर, एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस में कंपैरेटिवली मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. और प्राइवेट सेक्टर जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहेगी. लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एज इट इज कंट्रोल और मैनेज बाय द गवर्नमेंट, सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज ऑलवेज बीन देयर. अकाउंटेबिलिटी. सी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? अकाउंटेबल मीन्स यू आर आंसरेबल टू समवन. यू आर आंसरेबल टू समवन. सी, अगर मुझे कहीं से कुछ काम मिला, आई हैव बीन असाइंड अ वर्क फ्रॉम समवन, मुझे किसी ने कुछ काम करने को दिया कि आपको ये प्रोडक्ट कंप्लीट करना है, बनाना है आपको कुछ. राइट. सो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, इन ऑर्डर टू मेक दैट प्रोडक्ट, आई नीड सम टूल्स, आई नीड सम अथॉरिटी. मुझे कुछ पावर्स भी चाहिए, मुझे टूल बॉक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. सो मुझे ड्यूटी दी गई, मुझे काम दिया गया, काम करने के लिए मुझे पावर्स दी गई कि आपके पास ये चीजें हैं, यू कैन यूज इट. सो मुझे काम करने के बाद आई मस्ट बी आंसरेबल टू समवन. मुझे आंसर करना पड़ेगा दैट आई हैव कंप्लीटेड और नॉट, कि मैंने काम खत्म करा है या नहीं करा. सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हेन यू हैव बीन असाइंड अ वर्क फ्रॉम समवन, जब आपको किसी से काम मिलता है, सो यू मस्ट बी आंसरेबल, यू मस्ट अकाउंटेबल टू दैट पर्सन. आपको उसको आंसर करना पड़ेगा वेदर यू हैव कंप्लीटेड द वर्क और नॉट. तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आता है कि प्राइवेट सेक्टर किसको आंसर करेंगे, काम करा या नहीं करा. अकाउंटेबल टू द ओनर, जो इनके मालिक है उनको ही अकाउंटेबल होंगे, उनको आंसर करेंगे. एंड पब्लिक किसको आंसर करेंगे? अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट. मतलब गवर्नमेंट को ही एक्चुअल में आंसर करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू आंसर करेंगे कि वेदर दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क और नॉट. So this is actually the difference between private sector and the public sector enterprises. Then we'll come on the most important topic, that is departmental undertaking. See, this is a very important topic of this chapter, departmental undertaking. What does it mean?
दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। बहुत सबसे पुरानी वाली फॉर्म है। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन? Departmental undertaking is actually the oldest form of organizing public sector enterprises. सबसे पुरानी फॉर्म है। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इन्हीं डिपार्टमेंट के थ्रू काम करती है और जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, व्हाट डज इट मीन? दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, सबसे पुरानी फॉर्म है। एक तो पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुरानी फॉर्म है। ये सारा का सारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट या तो सेंट्रल कंट्रोल करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्ट कंट्रोल करेगा। जो भी इनका फंडिंग है, यानी जो भी इन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का पैसा आता है, दैट ऑलवेज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ही इनको पैसा देती है एंड द रेवेन्यू अर्न बाय दीज एंटरप्राइजेस, जो भी ये कमाते हैं वो भी सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही आता है। सो फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट and whatever the revenue earned by these undertaking is directly goes to the government treasury. It is actually controlled by the government or central government. जो इनके एम्प्लॉयज हैं, जो इनका स्टाफ है, उनका सिलेक्शन भी IAS और सिविल सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। मतलब इनकी अपनी आइडेंटिटी, इनकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पार्ट है। जैसे हम एग्जांपल देखें तो रेलवे जो है, रेलवे आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा। डिफेंस आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा, राइट। ब्रॉडकास्टिंग आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आएगा। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी सबसे पुरानी फॉर्म है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। इनका अपना एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट इसको पैसा देगी, जो भी बजट हमारा निकलता है गवर्नमेंट ही इनका बजट डिसाइड करती है, राइट। तो रीड करते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दीज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इन्हीं फंक्शंस के थ्रू काम करती है। And the activities performed by these enterprises are actually part of the government. गवर्नमेंट इन्हीं के थ्रू काम करेंगे और जो भी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करेंगी वो हमारी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज का ही पार्ट होंगी, राइट। उसके बाद आते हैं एग्जांपल्स। रेलवे, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज। तो ये सारे आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। फीचर्स पढ़ते हैं। सी फीचर्स ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर जनरली अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री as these enterprises are established as a department of ministry। वो कह रहा है जो कंट्रोल रहता है वो मिनिस्ट्री का रहता है, यानी गवर्नमेंट का रहता है, क्योंकि ये एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश्ड सेटअप कैसे हुई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। मतलब रेलवे को मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने एस्टैब्लिश करा है तो उन्हीं के कंट्रोल में रहती है, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री इज एक्चुअली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने ही इसको एस्टैब्लिश करा है, इसको बनाया है। दे आर अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री। जब मिनिस्ट्री ने ही एस्टैब्लिश करा है, मिनिस्ट्री के ही कंट्रोल में है, तो आंसर भी ये मिनिस्ट्री को ही करेगी, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट जो है इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। अकाउंटेबल मैंने अभी आपको बताया व्हाट वाज द मीनिंग। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। एज आई टोल्ड यू, जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही आएगा, और जो भी रेवेन्यू कमाती हैं, जो भी इनकम कमाती है, इज ऑल्सो पेड इन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो कमाएंगे वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा, जो पैसा आएगा वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में आएगा।
दे एक्ट थ्रू दी ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो काम करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। अब इनका सिलेक्शन कैसे होगा, इट्स एम्प्लॉयज आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है। सो रेलवेज के जो भी एम्प्लॉयज होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, दे आर हेडेड बाय एंड मीन्स दे आर सेलेक्टेड बाय द IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और सिविल सर्वेंट्स। फिफ्थ है, these undertaking may be under the central or state government or rules of central or state government are applicable। यानी ये वाली अंडरटेकिंग किसके कंट्रोल में रहेगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स ही एप्लीकेबल हैं। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, सबसे पुरानी फॉर्म है, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सबसे पुरानी फॉर्म हो गई, ट्रेडिशनल हो गई। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, राइट। जो फंडिंग आएगा वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएगा, जो कमाएंगे वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश करती है, मिनिस्ट्री ही कंट्रोल करेगी, मिनिस्ट्री को ही अकाउंटेबल करेंगे, मिनिस्ट्री को ही आंसर करेंगे। इनके एम्प्लॉयज जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो IAS के थ्रू सिलेक्शन होगा, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर इन पर कंट्रोल रहेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओनली इट्स फीचर्स।